Wow, what an honor to be with two legends. Uh, People you don't have to introduce. So that's really nice. Um, where do I start? So India has a lot of regional cinema, not just South and North. So I saw what some of the biggest movies are. And then we can maybe understand what is this whole South thing now, okay? So Assamese cinema is there. The biggest movie there is Ratnakar, 9 crores business. Bengali, there's a movie called Amazon Obijan, 48 crores. Bhojpuri, the biggest movie in Bhojpuri is 9 crore business. It's called Sasura Bada Paise Wala, which now I really want to see. In Gujarati, it's 60 crores. In Marathi, it's 110 Sairat. In Odia, it's 4 crores. In Punjabi, 57 crore. Carry on Jat 2, of course. Now let's come to the South. Are you ready? Kantara right now, still going 400 crores. KGF, the only, like you are sandwiched between the two. The first one, 250 crores. The second one, I'm not making this up, 1,200 crores. It's obviously different from the Sasural or Sasur Bada, whatever. But Tamil 2.0, the film called 2.0, 655 crores. Ponniyin Selvan, I'm sure I'm murdering all the pronunciations here, but sorry. 480 crores so far. In Telugu, RRR 1200 crores. Bahubali 1000 plus 600, like it's a lot, man. Saho 439, Pushpa 355, even Malayalam Lucifer at 200 crores. So this South is something else only, right? And of course Hindi I'm not mentioning, but you may have heard of the films Dangal, Bajrangi Bhaijaan, Secret Superstar, PK, Sultan. Now what is interesting is the Hindi ones are all pre-COVID. And the South ones are now, like, and some pre-COVID, some now. It's truly amazing what's going on. Let me go to Anupam sir first. Then we go to the guy who's from there. Sir, what is happening? Well, you are coining them as South Indian films and North Indian films. I will say that they are Indian films. I am equally proud of the films that are being made in the south part of India as they are Indian. So as long as they are Indian films that we are sharing the money, it's fantastic. Sir, मैं तो credit ले रहा हूँ. Indian film है, मैंने तो South Indian से शादी की है और taxes तो एक ही pool में जा रहे हैं. ससुराल वाले आए आप उनको खुश करने के लिए साउथ को और नॉर्थ को डिवाइड कर रहे हैं. No, there's no divide. There's actually no divide. I'm not asking you. I genuinely believe that this is a divide that is sort of being created. अब आप जापान की कोई फिल्म या जर्मनी की कोई फिल्म या पोलैंड की कोई फिल्म थोड़ा कहते हैं कि साउथ पोलैंड पोलिश फिल्म ने इतना बिजनेस किया, नॉर्थ पोलिश फिल्म ने इतना बिजनेस किया. We are a lucky country to have 22 official regional languages and 3,000 dialects that we are there. We are lucky to have that. But to sort of say that, and I genuinely believe it, I'm not trying to defend anything, I genuinely believe that this is Indian film industry and our brothers and sisters in regional film are making this much of money and we are making this much of money. They are much more cinema oriented city part of the world or in India, and in Indian Hindi film has to cater to different languages, whereas but now they have broken that barrier. All the films that you talked about, his film started with I think 50 lakhs of rupees and it has reached 83 crores in Hindi, which is phenomenal. And so that divide has been broken post-COVID. So that's what I think is the greatest achievement of cinema in India. Definitely. Good answer. And of course, they are all Indian films, but I told you the numbers. Other regional cinemas, 9 crores, 15 crores, 10 crores. South, thousands of crores. Something is being done right there, including you. You've also done something right. But as an observer, since we are at a summit where we discuss these things,
we can discuss. And I totally agree with you that South North thing is not. I'll tell you, मेरे ख्याल से, I have a guess on why that thing has come. Long time ago, there was only Doordarshan. On Sunday, there used to be a Hindi movie, prime slot. And on Thursday, there should be another movie. It was called regional film. So when in doubt, blame the previous governments. But that is the classification that was done by the government. Regional film and Sunday is the main big show. Maybe it's that legacy, but clearly it's no longer like it's huge South. So what is happening there? How do you think the South got its groove right? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ आई थिंक लोग नए नए कहानी को ढूंढ रहे हैं और आप पोस्ट कोविड बोल रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कोविड के बाद जो लॉकडाउन के बाद जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से लोग इतने वर्ल्ड सिनेमा या रीजनल फिल्म्स को देखने को मिला आई थिंक लोग उसके बाद जो लैंग्वेज का जो बैरियर था वो हटा के जो इंडियन सेंटिमेंट हमारा जो रूटेड कहानियाँ वो देखने का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वैसा तो हमारा इंडियन सिनेमा में बहुत सारे जॉनर में हम लोग फिल्म करते हैं कहानियाँ बताते हैं उसमें भी ज़्यादा कमर्शियल फिल्म्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न या हॉलीवुड फिल्म्स और दूसरे कंट्री का जो एक्शन फिल्म्स आता था वैसा कुछ इन्फ्लुएंस था ये मैं बता रहा हूँ शायद अर्ली 90 से इस तरफ देखा तो लेकिन लोगों को क्या चाहिए था वो अभी का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो वेस्टर्न फिल्म में हो उधर नहीं मिलेगा जो रूटेड कहानी जो मिलता है हमारा जो गांव में जो हमको क्या बिलीव करते हैं क्या क्या मतलब अगर मैं अभी कांतारा में मैं मेरा गांव का कहानी लेके आके बताया आई थॉट आई ऑलवेज बिलीव मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल तो वो एक रीजनल कंटेंट लेके आया तो जो इसमें जो हमारा जो रिचुअल्स हम बताए और हम दैवाराधने के बारे में बताए ये मैं सोचा भारत एक देश है एक कृषि से एक जुड़ा हुआ एक देश है हमारा पूरा कनेक्शन उधर से रहता है हमारा जो लाइफस्टाइल है वे ऑफ लाइफ है सब उधर से आता है करके सो कांतारा में क्या बताया था मैं वो भारत का हर गांव में वैसा कुछ बिलीफ है वैसा कुछ शक्ति को मानते हैं लोग वो हमारा सेंटिमेंट भी है हमारा इमोशन भी है शायद वैसा कुछ एलिमेंट्स ऐसा कुछ कंटेंट कनेक्ट हो रहा है ज़्यादा सो इसलिए ग्लोबली सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी साउथ का चल रहा है नॉर्थ का नहीं चल रहा है ऐसा कुछ ऐसा नहीं है हिंदी फिल्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा को कश्मीर फाइल्स को क्या बोलते हैं हम In fact, I was going to talk about that. Yes. So वो सेम टाइम दिस ईयर रिलीज हुआ कि वो कनाडा में इतना अच्छा कलेक्शन किया बहुत सारे लोग देखा है उधर जो कश्मीर में क्या हुआ जो कर्नाटक में सब लोग को पता नहीं लेकिन जो इमोशंस जो कनेक्ट हुआ उधर जो वो ज़्यादा चाहिए लोगों को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद ऑल्सो आई थिंक रेशियो वाइज थैंक्स फॉर मेंशनिंग कश्मीर फाइल्स रेशियो वाइज कश्मीर फाइल्स का बजट था 17 करोड़ रुपया उसने बिजनेस किया 350 करोड़ का आई थिंक कोविड में और लॉकडाउन में इंसान जो था लोग थे वो अपने आप से जूझ रहे थे परेशान थे किसी ने किसी को खोया किसी ने तो एक बदलाव आया अंदर से और उसके बाद फिर उनको लगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम मतलब किरण जो है वो कोरियन फिल्में भी देखती हैं सीरीज देखती हैं मलयालम सिनेमा देखती हैं तेलुगु सिनेमा देखती हैं तो दे अंडरस्टूड दैट देयर इज अनदर सिनेमा अनदर टैलेंटेड सेट ऑफ पीपल तो वो सब पैन इंडिया हो गया और उसके बाद जब फिल्में लगी तो उनको कहीं ना कहीं ऑडियंस को फेकनेस से थोड़ी सी एलर्जी हुई एनीथिंग दैट इज फेक बिकॉज दे वेंट थ्रू सो मच ऑफ चेंज पीपल वेंट थ्रू सो मच ऑफ चेंज वन स्मॉल वायरस मेड द डिफरेंस बट पीपल वेंट थ्रू दिस होल टर्मोइल इनसाइड
So they didn't want anything. I think this is what my analysis, that they don't want anything which is fake. What is real? What has happened over here is there is a person who is making a real film. It's rooted. It's Indian. Its emotions are believable. तो कोई भी चीज जो है वो थोड़ी सी जरा प्रिटेंशियस है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है. तो फिगर्स के अलावा, मतलब जो आप फिगर्स बता रहे थे शुरुआत में, उसके अलावा एक जो चेंज आया ऑडियंस में, दैट इज अ वेलकम चेंज. वरना 3 फिल्में जो मेरी आपने गिनाई नहीं शायद, पर मैं गिनाना चाहता हूं. कश्मीर फाइल्स मार्च में आई. एक मैंने फिल्म की गेस्ट अपीयरेंस है उसमें, कार्तिकेय 2. कार्तिकेय 2 में मेरे 2 सीन्स हैं मुश्किल से, मगर वो भी 50 लाख रुपए से शुरू हुई थी हिंदी सिनेमा में, और उसके गई वो 25 लाख, तो टोटल उसने बनाया 130 करोड़. कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. ऊंचाई एक 365 प्लस के लोगों की कहानी है जो एवरेस्ट बेस कैंप जाना चाहते हैं. इट इज नॉट ए रेगुलर हिंदी फिल्म. सो दैट मीन्स द सक्सेस ऑफ दीज फिल्म्स प्रूव्स that the audience does not want a cliche film, whether it is in Hindi or whether it is in any other language. I think that has made a difference. So इसका मतलब है कि what जो उभर के आ रहा है कि it's not so much the language, of course, but the story itself, the content itself, जो pretentious नहीं होना चाहिए, fake नहीं होना चाहिए. वेरी इंटरेस्टिंगली यू मेंशन बजट्स, तो चलिए अभी बजट की बात कर लेते हैं. सर, जितने बजट आपकी कश्मीर फाइल्स का था या कंतारा का था, इतना तो एक हीरो की फीस का जीएसटी नहीं होता है हिंदी में. नो, आई एम नॉट किडिंग. नहीं, अब एकदम से 100 करोड़ फी. आपके शब्दों के चयन पे मैं हंसा. अच्छा लगा मुझे. ओके, 100 करोड़ एक अगर स्टार की फीस है, विच इज हैपेंड, आई मीन वी डोंट हैव टू गो हु, इट्स क्वाइट कॉमन. उसका जीएसटी 18% है सर. 18% तो जीएसटी है उसका. अब आप कह रहे हो आपने 16, am I right? 16 crores is the number? Yeah, 17 crores में आपने पूरी पिक्चर बना ली. मैंने सुना है कनाडा का रिलीज मिलके, कैमरा का, वो कनाडा में जो किए हम लोग, हाँ, वो सब मिला के, वो उधर हमारा रिलीज का खर्चा मिलके वो 16 करोड़. और कई लोगों के बजट ऐसे होते हैं. सर, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, उसमें मैंने किसी को बुलाना चाहा, उन्होंने कहा कि मेरी कंगी करने के लिए और ये करने के लिए 11 लोग आएंगे. उन सब ये जोक मेरे सामने मारना था, मतलब आप भी ले आओ सर 5-6. आपको कंगी वाला जोक मेरे सामने बोलना था. अरे वो तो मैंने सोचा ही नहीं सर. आप तो बियॉन्ड कंगी हो. पर और मैं देख रहा हूँ कि 90% लोग यहाँ पर बिना कंगी के वाले बैठे हुए हैं. नो, सो आई एम जस्ट सेइंग, But I agree with you. You are right. मेकअप, नॉट जस्ट कंगी, इट वाज मेकअप, इट वाज दिस. कोई पानी लाएगा, मिनरल वाटर होना चाहिए. मैंने सुना है लोगों की 4-4 वैनिटी वैन होती हैं. दीज आर नॉट, सो दीज आर कॉस्ट स्ट्रक्चर्स विच आर सो. और एक एंड पे आजकल ऐसे भी कंटेंट बन रहा है. 15 करोड़ में आपने पूरी पिक्चर बना ली. यूट्यूबर्स तो बेचारे और भी कम में बनाते हैं, सम ओटीटी. सो व्हाट इज इट लाइक? क्या ये बॉलीवुड कोई, जो बॉम्बे है, हम भी वहीं रहते हैं मुंबई में, वो कोई और ही दुनिया में चल रहा है? या आप लोग कैसे, मतलब वेयर, हाउ कैन यू मेक अ फिल्म फॉर 15 करोड़ एंड दे आर मेकिंग फिल्म फॉर 400 करोड़ और उनकी नहीं चल रही है और आपकी चल रही है? ये कैसे हो, कैसे रहा है? व्हाट इज दिस? देखिए, ऐसा नहीं है. अभी कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 चली, बहुत अच्छी. संजय लीला बंसाली की फिल्म विद आलिया चली, बहुत अच्छी. तो ऐसा नहीं कि बड़े बजट की फिल्में चल नहीं रही हैं. जैसा कि मैंने बताया कि लोगों को एंटाइटलमेंट अच्छा नहीं लग रहा है. बताइए, एंटाइटलमेंट किसी को समझा? मतलब कि हम आपको बताते हैं कि अभी फिल्म कैसे बनती है, हम आपको बताते हैं कि क्या होना चाहिए फिल्मों में. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. दे आर इंटरेस्टेड, दे स्पेंड देयर मनी. ऑल्सो चेंज होता गया ना. पहले तो हमारे पास, हम सादे फिल्में देखने चले जाते थे, फिर डिफरेंट साधन हुए. आज लोगों के पास एंटरटेनमेंट के कितने साधन हैं. आप मॉल में चले जाइए, खाना खाने की जगहें हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वगैरह वगैरह, कितने सारे हैं. तो नाउ दे डोंट लाइक एनीथिंग. आई विल गो बैक टू द सेम थिंग, एनीथिंग विच स्मेल्स ऑफ फेकिज्म, इफ देयर इज अ वर्ड लाइक दैट. दे जस्ट डोंट understand that. They will rather go to see a Kantara, they will rather go to see a RRR, they will rather go and see some other film. American films क्या business करती हैं यहाँ पर? मतलब they are also equally now our competitors.
तो सर्वाइवल तो करना ही पड़ेगा ना। पर मैं अपने 38 साल में मुझे 532 फिल्में की हैं, बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारे लोग आए, बट सिंसियरिटी का और हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और मैं ये कोई ज्ञान की बातें नहीं कर रहा। तो ऐसे लगता है कि हम चलो अगर पैसे से बनानी है फिल्म, बट दिस इज, मुझे लगता है ये अमृत मंथन है, ये चर्निंग है। अमृत मंथन का पीरियड अच्छा होता है, इसके बाद जो आगे फिल्में बनेंगी वो शायद अलग बनेंगी, डिफरेंट बनेगी। कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ना। यू सी व्हेन यू टॉक अबाउट, जैसे हम लोगों में क्या कमजोरी है, आपको दुनिया का कोई भी सिनेमा आप में पीछे वुड नहीं लगा होगा, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम अपने आप को बॉलीवुड बोलेंगे। आप भी बार बार बॉलीवुड बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जापानीज फिल्म को जापानीज वुड बोलते हैं, इटालियन को इटालियन वुड बोलते हैं, बट इवन द रीजनल फिल्म्स आर एग्रीड टू हैप्पी विद कॉलीवुड, टॉलीवुड। दिस इज नॉनसेंस। ये हमारी कमजोरी है कि हम बड़े खुश हैं कि हमारे को बॉलीवुड बोलते हैं। अरे ये हिंदी फिल्म सिनेमा है या इंडियन सिनेमा है, हम खुश हैं इस बात से। सो आई थिंक ये एक हमारी कमजोरी है जो इसको धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ठीक है ऋषभ, सर कीप्स टॉकिंग अबाउट द फेकनेस ऑफ इंडियन In today's conversation, I'm in talking. fakeness of Hindi film industry. I will not say Bollywood now. Just easy था सर, इसलिए बोल दिया। ऐसे कोई हो रही, ठीक है। तो they talk about the fakeness. नहीं, I'm not. नहीं, No, और I'm not you're talking not about. alone. No, I am part of Hindi film industry, and whatever I am today is thanks to them. So I'm not criticizing them. You asked me a question that बड़ी फिल्में क्यों नहीं चलती हैं? मैंने ये कहा कि कोविड के समय में ऑडियंस में एक बदलाव आया है। कोविड के बाद अब उनको लगता है कि यार बड़ी भी फिल्म है तो उसमें कहीं ना कहीं दिल से निकली और दिल तक पहुंचे, ऐसा होना चाहिए। ये मेरी क्लैरिटी है। अदरवाइज आई हैव डन द मोस्ट रिडिकुलस रोल्स विद जॉय एंड पैशन। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब मैंने दिल फिल्म में मक्खी एक्चुअली निकाली थी, और मतलब मक्खी चूस के लिए, बट हजारों लोग बिलीव करते हैं, करोड़ों लोग बिलीव करते हैं। So I'm not taking away the joy and the pride of being a part of Hindi film industry. I'm just saying that why that must have happened now. That's it. हाँ, sir also mentioned कि now there are a lot of options. People can watch OTT, of course this television. Even you just open your phones, you can see YouTube Shorts, Instagram Reels. You know, it's very easy to entertain yourself now. So films require a lot of effort. You have to go to the theater now. There was a time there was nothing like cinema, right? But today, do you feel that there's a pressure because of that? That you know, youngsters will just watch reels on their phone all day long. सही है, क्योंकि अभी आज बेस्ड ऑन सिनेमा कौन अपडेटेड कौन है? मेरा हिसाब से ऑडियंस है, वो ज्यादा अपडेटेड है। जो अपडेटेड कौन नहीं है, तो आई थिंक हम राइटर्स और फिल्म मेकर्स, क्योंकि आज क्या रिलीज हुआ है, शायद वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, थिएटर हो, वो अभी अभी देख के आए हैं ऑडियंस। लेकिन हम लोग एक साल का एक पुराना कहानी अभी बता रहे हैं। सो शायद वो 2 साल 3 साल भी लगेगा। तो ऐसा एक कहानी हम लोग लेके आ रहे हैं। तो हम कुछ दूसरा वेस्टर्न फिल्म्स, और वही मैं कह रहा था, उधर से इन्फ्लुएंस होके हम लोग कुछ फिल्म का कुछ फॉर्मेट होता है ना, वही फॉर्मेट में हम लोग कहानी बताया। वैसा कुछ कहानियां, वैसा कुछ जॉनर का जो फिल्म उन लोगों को ओरिजिनली हॉलीवुड या किसी और इंडस्ट्री से मिलता है। लेकिन मैं बिलीव करता हूं, मैं अगर जाके मेरा गांव का एक कहानी लेके आया, वो आपका कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म किधर भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मेरा गांव में रहता है, तो मैं राइटर बन गया, तो मैं लेके आके आपको पेश कर सकता हूँ। तो ये शायद अपडेट होना चाहिए, जो कहानियां ज्यादा ओरिजिनल रूटेड लेके आया तो वो ज्यादा कनेक्ट होता है। सो वो कनेक्शन थोड़ा मिस हो गया, तो ऐसा शायद अनुपम जी वही फ्रेम कर रहे थे कि you cannot, you have to give something unique. You have to डेफिनेटली इट्स प्रेशर तो है, 100% है। अभी एक इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स देख के लोग अभी कैसे जज करते हैं, एडिट पेस ज्यादा होना चाहिए, ये म्यूजिक ऐसा ये ठीक नहीं है, और बैकग्राउंड स्कोर अच्छा रहना चाहिए था, और परफॉर्मेंस भी ये सीन में हर सीन को अभी मतलब ऐसा रिव्यूज आता है, हर लोग अभी क्रिटिक्स है। नहीं, आई थिंक ओरिजिनल जो है ना वो हमेशा चलेगा। हाँ जी, ओरिजिनल, अभी हम लोग 5 स्टार की जगह कभी कहते हैं ढाबे पे चल के खाना खाते हैं।
इसी स्वयं रोटी से हम वैसा कुछ खाते हैं। तो ओरिजिनल जब है, जब तक ओरिजिनल है वो कहीं ना कहीं आपके दिल को छुएगा। ओरिजिनल गाने ले लीजिए, अब थोड़ी देर के लिए वो आएगा। वो याद है वो गंगनम गाना क्या हिट हुआ था? गंगम स्टाइल। मतलब पागल हो गए थे लोग, जो भी आदमी देख टांग हिला के ऐसे ऐसे हिलाता रहता था। आज कहाँ है वो? सो ये जो आप पानी में जो बुदबुदे उठते हैं उनकी बात कर रहे हो, बट आप शुरू से ले लीजिए, बिमल रॉय से, बाकी से, आपको मनमोहन देसाई वगैरह से जितने भी ले लीजिए, सूरज बरजात्या को ले लीजिए। इन लोगों ने जब फिल्में जब भी बनाई है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कमाल की ओरिजिनल थी 90s में। दैट वाज द चेंज दैट ब्रॉट इन, कि हीरो जो है वो बोलता है कि मैं लड़की के फादर को मना के तब तुमको लेकर जाऊंगा। दैट थॉट हैड नेवर कम बिफोर दैट। पहले तो होता था मैं तेरे को उठा के ले जाऊंगा, मैं घोड़े पे ले जाऊंगा, गाड़ी में ले जाऊंगा, भाग जाऊंगा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम द शाहरुख खान टेल्स द गर्ल काजोल कि मैं तब तक नहीं लेके तेरे को जाऊंगा। नो दैट थॉट वाज वेरी गुड। सो सिमिलरली द प्रोसेस चेंज बट द ओरिजिनलिटी ऑलवेज हैज रिमेन्ड। शोले फिल्म पहले 3 हफ्ते चली ही नहीं थी। दिस इज मिस्टर रमेश सिप्पीज ओन अकाउंट, नहीं चली थी। एंड देन इट बिकेम द बिगेस्ट हिट। So whenever you will remember the classical hits or not so big hits, they will be the original films in every era. Yes, definitely. आपकी खुद की लिखी हुई 3 Idiot, मतलब वो अलग बात है कि उन्होंने आपको क्रेडिट नहीं दिया। दिया सर, हमने ले लिया छीन छान के। छीन, बट देखिए सर, नहीं अच्छा किया आपने, छीना बिल्कुल करना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। बट वो देखिए इवन 2 States, ओरिजिनल स्टोरीज ना, सो इट वर्कड बिकॉज ऑफ दैट। Rishabh ji, Anupam ji, it was an absolute joy. You shared so much about the films you made, answered every question and also opened about your personal things. Thank you guys for coming. Standing ovation for all these guys. Thank you. Thank you so much.